معاشی سرگرمیوں میں اضافے کے لیے بنیادی ڈھانچے کی ترقی ناگزیر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سکھر حیدرآباد موٹر وے پر کام کے جلد آغاز کی ہدایت۔ بابوسر ٹنل اور خزدار کچھ لاکھ شاہراہ منصوبوں کو جلد شروع کیا جائے۔ گزشتہ 4 سال میں مجرمانہ غفلت کے نتیجے میں ترقی کے سفر کو روکا گیا۔ منصوبوں کے لیے کانٹریکٹ دینے کے طریقہ کار کو مزید شفاف بنایا جائے۔ وزیر اعظم برآمدات میں اضافے کے لیے کاروباری برادری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔ سیالکوٹ انڈسٹریل زون اور پروسیسنگ زون کی تعمیر کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ سے متعلق مسائل پر بھی توجہ دی جائے۔ برآمدات اور سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کی جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف بادل برسنے لگے، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ملک کے مختلف حصوں میں پری مانسون بارشوں کا آغاز۔ بالائی علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش، کئی علاقوں میں ژالہ باری۔ خشک سالی کا خاتمہ، زیر زمین پانی کی سطح میں اضافہ فصلوں کے لیے مفید۔ بارشوں کا سلسلہ 23 جون تک جاری رہے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ پی ٹی آئی حکومت اور IMF معاہدے سے متعلق قوم کو جلد اعتماد ملیں گے۔ عوامی مشکلات کا احساس ہے، جلد معاشی چیلنجز پر قابو پا لیں گے۔ وزیر اعظم کا ٹویٹ۔ پی ٹی آئی دور میں صرف عمران خان، کارٹلز اور مافیاز نے جیبیں بھریں۔ سوچی سمجھی سازش حکمت عملی کے تحت معیشت کو تباہ کیا گیا۔ ملک کو عمران خان لمیٹڈ کمپنی کے طور پر چلایا گیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ عمران خان اپنی کارکردگی پر بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار ان کے حوالے ہو تو ٹھیک، ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ تاریخ بتائے گی کہ کس نے ملک برباد کیا اور کس نے ریاست کے لیے سیاست کو داؤ پر لگایا۔ مشکل صورتحال میں تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وفاقی وزراء خواجہ محمد آصف، مولانا اسد محمود، قمرالزمان قاہرہ اور مصدق ملک کی نیوز کانفرنس۔ مراسلہ سیاسی معاملہ تھا تو عمران خان اسے قومی سلامتی کمیٹی میں کیوں لے کر گئے؟ حکومت IMF معاہدے پر عمل درآمد کی پابند ہے۔ عمران خان نے 4 سال تک ملکی معیشت سے کھلواڑ کیا۔ رہنما مسلم لیگ نون مریم نواز۔ ہمارے لیے سیاست سے زیادہ ریاست اہم ہے۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے تمام توانائیاں بروئے کار لا رہے ہیں۔ عمران خان اور پرویز الہی کی ضد اور انا ہمارے راستے کی دیوار نہیں بن سکتی۔ انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی تو قانون حرکت میں آئے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز۔ پاکستان کی جغرافیائی اہمیت کو استعمال کرتے ہوئے بہتر مواقع تلاش کرنے ہوں گے۔ اقتصادی اور سفارتی سطح پر ہمارے پاس صلاحیت موجود ہے۔ پاکستان اب بھی عالمی طاقتوں کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری۔ کشمیر لہو لہو، کلگام میں ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 2 نوجوان شہید۔ نہتے کشمیریوں پر بھارتی فوج کے مظالم پر عالمی برادری کی افسوسناک خاموشی۔ سری نگر، بڈگام اور بارہمولہ میں جماعت اسلامی کے ارکان کے گھروں پر چھاپے۔ صوبوں کو پانی کی دستیابی کے حوالے سے خصوصی کمیٹی کا اجلاس۔ بلوچستان کو پانی کی فراہمی کے لیے ترجیحی اقدامات کیے گئے ہیں۔ خودکار اور منصفانہ نظام کے لیے آئندہ سال تک ٹیلی میٹرز کی تنصیب مکمل ہو جائے گی۔ امریکہ میں مہنگائی نے 41 سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ تاریخی مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے شرح سود 30 سال کی بلند ترین سطح پر۔ برطانیہ میں مہنگائی کی 40 سال کی بلند ترین شرح سود میں مسلسل 5ویں بار اضافہ کر دیا گیا۔ یوکرین پر روس کے حملے جاری۔ فرانس، جرمنی اور اٹلی کے لیڈرز کا یوکرین کا دورہ۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی سے صورتحال پر تبادلہ خیال۔ یوکرینی عوام سے اظہار یکجہتی اور امداد جاری رکھنے کی یقین دہانی۔ امریکہ کا یوکرین کے لیے $1 ارب کی فوجی امداد کے نئے پیکج کا اعلان۔ نیٹو وزراء دفاع کا عسکری امداد کی ہنگامی بنیادوں پر فراہمی پر غور۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसके मज़ाफ़ात में वक्त हुआ चाहता है आज़ान इशा का। आइए आज़ान सुनने की सादत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला फलाह, हय्य अला फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। बुलेटिन का आगाज इस खबर से कि माशी सरगर्मियों में इजाफे के लिए बुनियादी ढांचे की तरक्की नागुज़ीर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर काम के जल्द आगाज, कराकोरम हाईवे पर बाबूसर टनल और खुजदार कुचलाक शाहराह मंसूबों को जल्द शुरू किया जाए। इस्लामाबाद में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तहत मंसूबों से मुतालिक जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने प्रिक्योरमेंट के तरीक़ेकार को बेहतर बनाने के लिए कमेटी के क़याम की मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 4 साल में मुजरिमाना गफलत के नतीजे में तरक्की का सफ़र रोका गया। मुल्क तरक्याती मंसूबों में मज़ीद तात्तुल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ ने कहा कि मंसूबों के लिए कॉन्ट्रैक्ट देने के तरीक़ेकार को मज़ीद शफ़ाफ बनाया जाए। मुतालिका इदारों की जिम्मेदारी है कि कौम का वक्त और पैसा बचाएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैनुल-अक़वामी कंपनियों की तस्दीक के लिए पाकिस्तानी सफारतखानों से मुआवनत हासिल करें। ब्रीफिंग में बताया गया कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे कराची पेशावर मोटरवे का अहम सेक्शन है, जिस पर काम गुज़श्ता हुकूमत की सुस्त रवि की वजह से तात्तुल का शिकार रहा। 306 किलोमीटर लंबी 6 रोया मोटरवे 15 इंटरचेंजेस के साथ 6 अजला में से गुजरेगी। शुरका को थाकोट, रायकोट सेक्शन और बाबूसर टनल मंसूबों के बारे में भी ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म ने तमाम वफाकी वजारतों और सूबाई महकमों को हिदायत की हैं कि सियालकोट की कारोबारी बरादरी और सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करें ताकि शहर की मौजूदा $2.5 अरब की बरामदात में इजाफा किया जा सके। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वफ़द से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कराची, लाहौर और सियालकोट जैसे सनती शहरों में बरामदात में इजाफे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी की तरगीब के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर एक जामे हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने सियालकोट के बरामद कुनिंदगान को खुसूसी कार्गो ट्रेनों की फराहमी और सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए गैर मुल्की कमर्शियल फ्लाइट्स की तादाद बढ़ाने के लिए काबिल अमल प्लान मुरतब करने, दरामद और बरामद कुनिंदगान की सहूलत के लिए इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तंबुल ट्रेन बहाली पर काम करने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म ने सियालकोट की अहम शाहराहों बशमूल फ्लाईओवर्स और अंडरपास जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रोड टू मक्का मंसूबे पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि इस मंसूबे को दूसरे शहरों तक भी फैलाया जाएगा। इस्लामाबाद में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की क़यादत पर रोड टू मक्का प्रोजेक्ट टीम से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इस मंसूबे के तहत हज़ारों पाकिस्तानी आज़मीन हज को सहूलतें मुयस्सर होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे बराबराना ताल्लुकात हैं और इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ उमूर पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। सऊदी सफ़ीर ने बताया कि रोड टू मक्का इक़दाम का मकसद आज़मीन हज की सऊदी इमिग्रेशन और कस्टम से मुतालिक रस्मी कार्रवाइयों को इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रवानगी से कबल मुकम्मल करना है। इस्लामाबाद में इंजीनियर अमीर मकाम और साबिक रुकने कौमी असम्बली सरदार मोहम्मद यूसुफ से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि समाजी तरक्की और अवामी फलाह हुकूमत की अहम तरजीहात में शामिल है। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा में सस्ते आटे की फराहमी और तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सरदार मेहताब अहमद खान और सेनेटर जावेद अब्बासी ने भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और गलियात के इलाकों की तामीर और तरक्की पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गलियात में सेहत, तालीम की सहूलियात की फराहमी, समाजी तरक्की और अवामी बहबूद के दीगर मनसूबों के लिए वफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा करती रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ ने मुलाकात की और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस बात पर इत्तफाक किया गया कि तमाम सियासी जमातें मिलकर माशी बहरान पर काबू पा लेंगी। मियां जावेद लतीफ़ ने मुश्किल हालात में मुतवाज़न बजट पेश करने पर हुकूमत के इक़दामात को सराहा। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में पाक बहरिया से मुतालिक पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म से बरतानवी माहिर तालीम और मुसन्निफ माइकल बॉर्बर ने भी मुलाकात की और शोबा तालीम की तरक्की समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं था। PTI हुकूमत और IMF से मुआहदे से मुतालिक कौम को जल्द एतमाद में लिया जाएगा। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफे से अवाम के मुतासर होने का एहसास है। हम जल्द माशी मुश्किलात से निकल आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने IMF के साथ अब तक का सबसे बदतरीन मुआहदा किया। इंतहाई बुरे माशी फैसले करने वाले लोगों में सच का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने कहा कि कौम जिन मुश्किलात से गुजर रही है उन हालात के जिम्मेदार खुद को कैसे मासूम जाहिर कर सकते हैं। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के 4 साला दौर में सिर्फ इमरान खान, कार्टल्स और माफियाज ने जेबें भरी, सोची समझी साजिशी हिकमत अमली के तहत मुल्क की मैशत को तबाह किया गया। फवाद चौधरी के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल में वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि मुल्क को इमरान खान लिमिटेड कंपनी के तौर पर चलाया गया और वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार अवाम को भूखा और गरीब करने, माशी तबाही और कश्मीर फरोशी के लिए इस्तेमाल हुआ। साबिक दौर में पेट्रोल, बिजली, गैस, दवाई, आटा, चीनी, आलू, प्याज और तेल सोची समझी हिकमत अमली के तहत महंगा किया गया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि मरासला सियासी मामला था तो इमरान खान इसे कौमी सलामती कमेटी में क्यों लेकर गए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान 4 साल तक मुल्क की मईशत से खिलवाड़ करते रहे। मुश्किल फैसले न किए गए तो मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है। मोहम्मद मजहर अब्बास तफसील से आगाह करेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि साबिक हुकूमत ने अवाम को महंगाई की दलदल में धकेल दिया। मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में अपनी तरफ से कोई इजाफा नहीं किया। ये फैसले मुल्क की मफाद में किए जा रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत ने IMF से मुआहदे किए जिन्हें मौजूदा हुकूमत निभा रही है। आज जो हुकूमत पाकिस्तान को करना पड़ रहा है, मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम पाबंद हैं IMF के उस मुआहदे की पाबंदी के। मरियम नवाज ने कहा कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ मैशत की बहाली और मुल्क को पांव पर खड़ा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साबिक हुकूमत ने जाते जाते ऐसा वार किया कि मुल्क को संभलने में वक्त लगेगा। शहबाज शरीफ हुकूमत ने 1 रुपए का कोई अपनी तरफ से इजाफी टैक्स अवाम पर नहीं लगाया। ये वही 2019 जुलाई का मुआहदा है जो इमरान खान की हुकूमत IMF से करके आई थी, जिस पर उन्होंने मईशत की बर्बादी के दस्तखत किए थे।
4 साल खिलवाड़ करते रहे पाकिस्तान की तकदीर से, मईशत से। पता ही नहीं था कि मईशत किस तरह चलानी है, और जब मईशत बर्बाद हो गई, जब सारे इंडिकेटर्स ख़राब हो गए, तो IMF से पैसे लेने के लिए पूरा पाकिस्तान और उसकी मईशत को गिरवी रखा है। मरियम नवाज ने कहा कि मरासले के मामले पर भी सियासत की गई और इदारों को बेजा घसीटा गया। DGI-SPR ने वाजे कर दिया है कि साजिश नहीं हुई थी। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये सियासी मामला है, DGI-SPR को इसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ये सियासी मामला था तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बतौर वज़ीर आज़म उसको क्यों लेकर गए? DGI-SPR ने कल जो बात की है वो रिप्रेजेंट करते हैं उस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज को जिनके पास फैक्ट्स होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की सिक्योरिटी। वो अपने पास से कोई सियासी बात नहीं कर रहे, वो फैक्ट्स पे बेस बात कर रहे हैं। वो झूठ को सच बना के पेश नहीं कर सकते। ये कौम का सलामती का, कौमी सलामती का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, सियासी मामला नहीं है। इसमें जो सबसे मैं समझती हूँ कि मुजरिमाना बात है कि आपने अब इमरान खान ने, जिसका दूसरा नाम फितना खान है, उसने अपनी सियासत चमकाने के लिए उसने पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को उसने दाव पे लगा दिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने कहा कि इमरान खान अवाम को धरने पर बुलाकर खुद रफू चक्कर हो गए। अवाम की तरफ से लॉन्ग मार्च मुस्तरद होने पर इमरान खान सदमे में हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी इंतशार और फितना फसाद की काल देगा तो रियासत उसे पूरी कुव्वत से रोकेगी। मरियम नवाज ने कहा कि इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और दीगर वज़रा ने कहा कि इमरान खान मुल्क को तबाही के दहाने पर छोड़कर गए। माशी बहरान से निकालने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। तफसील बताएंगे फहद जावेद। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से मुल्क में महंगाई में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि IMF से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का मायदा इमरान खान की हुकूमत ने किया था। इमरान खान साहब ने जो है बड़ी क्लियर चॉइसेस रखी हुई हैं कि मुझे हुक्मरानी दो, नहीं तो मुल्क तबाही में चला जाए, मुझे उस पर कोई, वो खुद कह रहे हैं कि फौज तबाह हो जाएगी, मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे अगर मुझे हुक्मरानी ना दी गई। ये खुद कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनके ज़हन में कोई बहाम नहीं है कि वो सिर्फ हुक्मरानी इस मुल्क के कर सकते हैं। अगर वो हुक्मरानी नहीं उनके सुपुर्द की जाती तो मुल्क जाए, तबाह हो जाए, भाड़ में जाए, खुदा न खास्ता तबाह बर्बाद हो जाए। वजीर मवासलात असद महमूद ने कहा कि इमरान खान कौम के मुजरिम हैं, उनकी वजह से मुल्क के माशी हालात खराब हुए हैं। जो मुआहदा उन्होंने IMF के साथ किया और वो खुद इकरार कर रहे हैं, और उसने खुद कहा कि IMF ने मुझे कहा कि ये बढ़ा दो और मैंने इनकार कर दिया। आपने इनकार किया तो आपने उस मुआहदे पर दस्तखत क्यों किए? आप तो कौमी मुजरिम हैं। आप वहाँ बहैसियत इमरान खान या बहैसियत वज़ीर के मुआहदा नहीं कर रहे थे, बल्कि आप वहाँ बहैसियत पाकिस्तान के मुआहदा कर रहे थे। वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत की करप्शन और मुल्क दुश्मन पॉलिसियों की वजह से मुल्क की मईशत दबाव का शिकार है। पूरे साल का डिफेंस का बजट 1536 अरब है, और ये फैसला जो खान साहब सियासी तौर पे कागज़ लहरा के करके चले गए, उसकी कीमत ख़जाने के ऊपर 1500 अरब, 12 से 1500 अरब थी। पूरे पाकिस्तान के तरक्याती मंसूबे जिसे हम PSDP कहते हैं वो हैं 727 अरब के, और इस फैसले की कीमत थी 1200 से 1500 अरब। वजीर आजम के मुशीर कमर ज़मान कायरा ने कहा कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाई जाती तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत की तरफ से अवाम को झूठे ख्वाब दिखाए गए। ये सिर्फ हम हैं, हमारी हुकूमत है जिसने फैसला किया है कि हम सियासी नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे। लोगों का गम और गुस्सा सियासी नुकसान की सूरत होता है, वो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान का नुकसान नहीं करेंगे। हम साबिक़ा हुकूमत की तरह ये नहीं है कि सिर्फ पॉपुलर फैसले करते हुए सिर्फ आवाम को वो चीप पॉपुलैरिटी के लिए झूठे ख्वाब दिखाते हुए हम पाकिस्तान को एक गड्ढे में फेंक दें। वफाकी वज़रा ने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क को माशी बुरहान से निकालने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। फहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की अहसन इकबाल कहते हैं कि एक तरफ खाई थी तो दूसरी तरफ समुंदर। हमने मुल्क की मईशत को बचाने के लिए सियासत को दाव पर लगाया। ये सियासत का नहीं, खतरात से नबर्द आज़मा होने का वक्त है। रिपोर्ट करेंगे वकार हैदर।
اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا، ہم نے سیاست پر ملکی مفاد کو ترجیح دی ہے۔ حکومت کو مجبوراً فیول پرائس میں ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑتی ہے۔ قیمت خرید پر پیٹرول عوام کو مہیا کر رہے ہیں۔ حکومت نے تمام ٹیکس اور ڈیوٹیز ختم کر دی ہیں، اس کے باوجود جو اتنی اضافے والی قیمت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بین الاقوامی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے۔ آج پاکستان جس معاہدے کے سامنے کھڑا ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کا معاہدہ ہے، جس میں انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ وہ تمام سبسڈیز کو بھی ختم کریں گے اور مزید ٹیکس بھی عائد کریں گے پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب ان کے وزراء یہ کہتے ہیں کہ پیٹرول 300 روپے تک جائے گا، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ کیا IMF کے ساتھ طے کر کے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا، عمران خان ممنوعہ فنڈنگ لے کر اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ملکی ٹیکس محصولات 7,000 ارب روپے کی ہیں، جس میں سے وفاق کا حصہ 3,000 ارب روپے ہے۔ اگر ہم نے سیاست کو بچانا ہوتا تو 1-2 مہینے میں اسمبلیاں توڑ کے الیکشن کرا کے ملک کو ایک اور بے یقینی میں پھینک دیتے، کیونکہ پھر 3 مہینے کے لیے پاکستان میں کوئی حکومت نہ ہوتی کہ جس سے کوئی بات چیت کر سکتا یا جو کوئی مستقل فیصلہ کر سکتی، اور 3-4 مہینے کا بحران پاکستان کی معیشت کو تباہ کن صورتحال سے دوچار کر سکتا تھا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اس وقت ملک کو چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے۔ معیشت کے لیے نیشنل ایکشن پلان بنانا چاہیے اور آئندہ 10 سال کے لیے معاشی پلان ترتیب دینا ہوگا۔ وقار حیدر، PTV نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ ہمارے لیے سیاست سے زیادہ ریاست اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اور پرویز الہی کے ضد اور انا ہمارے راستے کی دیوار نہیں بن سکتی۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے تمام توانائیاں بروئے کار لا رہے ہیں۔ طاہر کلاسرا کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے کہا کہ کسی نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی تو قانون حرکت میں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے قوم سے کیا گیا ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا۔ 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھروں کا جھوٹا خواب دکھایا گیا۔ جھوٹے شخص کے جس نے پاکستانی قوم کے بچوں کے خوابوں کو چکنا چور کیا، 1 کروڑ نوکریوں کا جھوٹا وعدہ کر کر مزدوروں سے مذاق کیا، گھناؤنا 50 لاکھ گھروں کا جھوٹا وعدہ کر کے۔ نئے پاکستان نے ایسے جنم لینا تھا۔ جب 2018 کی حکومت ختم ہوئی تو آپ کا GDP جو گروتھ ریٹ تھا وہ 5.8% تھا پرانے پاکستان میں، اور نیا پاکستان جب آیا تو -0.0 چلا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوام کو سستی اشیاء کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ حمزہ شہباز نے کہا 4 بار پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، لیکن چند منٹوں بعد اجلاس کو مؤخر کر دیا جاتا، جس پر عوام کے پیسے کا ضیاع کیا گیا۔ ایک اجلاس پر کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے اس قوم کے ایکسچیکر کا، چاروں مرتبہ چند منٹوں بعد اجلاس جو ہے وہ ایڈجرن کر دیا گیا۔ پرویز الہی صاحب کی منشا ہے، راجہ اندر نہیں چاہتے کہ میرے پاس نمبر پورے نہیں ہیں تو اجلاس ہو، کوئی اور وزیر اعلیٰ بن جائے۔ 48 گھنٹے میری کابینہ، میرے وزراء، میری اپنا معزز ممبر پارلیمنٹ بیٹھے رہے۔ نامساعد حالات میں تمام جو آئینی قانونی جو راستے ہمیں کہتے تھے کہ یہ صوبے کو جو بالکل ایک جام کر دیا گیا ہے، یہ بھی تو میری ذمہ داری ہے نا، یہ انا ہے، اور اسی انا نے آج اس شخص کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آئینی بحران جو پرویز الہی نے پیدا کیا اور صوبے کی عوام کو بجٹ سے محروم رکھنے کی کوشش کی گئی۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی پچھلی حکومت کی پیدا کردہ ہے، جسے ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان جب قوم کو پیٹرول پر سبسڈی کی خبریں سنا رہے تھے تو ان کے وزراء IMF کو سبسڈی واپس لینے کی یقین دہانی کرا رہے تھے۔ طاہر کلاسرا، PTV نیوز، لاہور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل کے حل پر خصوصی توجہ اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی کوششوں کے نتیجے میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اسٹریٹجک ریفارمز کے سربراہ سلمان صوفی کے مطابق پاکستان کا بین الاقوامی تصدیقی کنونشن سے الحاق ہو گیا ہے، جس سے سمندر پار پاکستانیوں کے کاغذات کی تصدیق میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ سلمان صوفی کا کہنا ہے کہ پاکستان بھر میں دفتر خارجہ کے منتخب نوٹری سے دستاویزات کی تصدیق کے بعد 122 ممالک میں یہ تصدیق قابل قبول ہوگی۔ اس کنونشن کو جو ہم نے اپوسٹل کنونشن کو جو ہم نے ریٹیفائی کر دیا ہے، تو اس کے تھرو جو جتنے بھی اس کے سگنیٹوریز ہیں، جو تقریباً 200 سے زیادہ ممالک ہیں، وہ اب ہماری جتنی بھی ڈاکیومنٹیشن جو یہاں سے منسٹری آف فارن افیئرز اپنے نوٹریز کے تھرو
اور ان کو ऑथेंटिकेट करेगा तो वो वहाँ पे वैसे ही एक्सेप्टेबल हो जाएंगी. तो उसमें उनको किसी किस्म का एक्स्ट्रा कोई काम करने की, कोई ऑथेंटिकेशन करवाने की जरूरत नहीं रहेगी. तो ये वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और जो हमारे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब हैं, उनकी एक स्पेशल इसमें बहुत काविश थी कि जिसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको रेटिफाई कर दिया और अब विद इन 6 मंथ जो है ना, ये हमें हेग से इसकी अप्रूवल आ जाएगी और फिर उसके बाद जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो बिला किसी प्रॉब्लम के फेस किए हुए तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स को हैं वो बाहर के मुल्कों में इस्तेमाल कर सकेंगे. सेनेट में वफाकी बजट में बहस में हिस्सा लेते हुए अरकान ने आलमी मालियाती इदारों पर इन्हिसार करने के बजाय मुल्की मसाइल को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया. तफसील बता रहे हैं राना शहजादुस्सलाम. चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सदारत में होने वाले इजलास में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुसल्लह अफवाज के तर्जमान बार बार किसी साजिश के ना होने का वाज़े बयान दे रहे हैं. ताहम PTI की क़यादत इस वाज़े बयान को भी अपने सियासी मकासद के लिए तस्लीम नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद के बयान के मुताबिक हुकूमत को अपने खिलाफ इस मुबैना साजिश का 4 माह पहले ही इल्म हो गया था. सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने ऐवान में ये सवाल उठाया कि अगर हुकूमत को 4 माह पहले अपने खिलाफ होने वाली मुबैना साजिश का इल्म था तो इस साजिश को क्यों नाकाम नहीं बनाया गया. उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस साजिश के किरदारों को क्यों बेनकाब नहीं किया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान पहले वजीर आजम हैं जिनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई, जिसके बाद इमरान खान ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए मुबैना साजिश का बयानिया घड़ा. वफाकी बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए हुकूमती अरकान सेनेटर इरफान सिद्दीकी, मौलाना अताउर रहमान और ताहर बजिंजो ने कहा कि मुश्किल हालात में ये एक मुतवाजन बजट है. उन्होंने कहा कि सियासी इंतशार और सियासी अदम इस्तेहकाम हमारी माशी तनज़ली की बड़ी वजह है. अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर मुश्ताक अहमद, शिबली फराज, एजाज चौधरी और दोस्त मोहम्मद ने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए इदारों को सियासत में ना घसीटा जाए. उन्होंने कहा कि IMF के पास जाने से बेहतर है कि मुल्की मईशत को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए रास्ता तलाश किया जाए. सेनेट के इजलास में उर्दू के मारूफ मुसन्निफ गोपी चंद नारंग की वफात पर 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई. सेनेट का इजलास कोरम पूरा न होने पर सुबह 10:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया. राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद. और सेनेट इजलास के बाद अब कुछ बात करते हैं कौमी असम्बली के इजलास की, जहां पर बजट 2022-23 पर बहस में हिस्सा लेते हुए अरकान असम्बली ने कहा कि मुल्क में ज़राअत के शोबे पर गुज़श्ता बरसों में तवज्जो नहीं दी गई और पानी की कमी के बायस सूरत हाल खराब है. हुकूमत ज़राअत की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दाम करे. असलम भूटानी, मीर खान मोहम्मद जमाली, सैयद जावेद हसनैन, मोहम्मद जमालदीन, मोहसिन दावर, अफजल खान ढांडला, नवाबजादा इफ्तिखार अहमद, राव अजमल, सैयद हुसैन तारिक, एहसानुल हक बाजवा, आमिर अली खान मक्सी और शाहिदा रहमानी ने बजट में बहस करते हुए अपनी तजावीज़ पेश की. इजलास सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया. सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने खातून टैक्स गुजार को टैक्स मुहतसिब में शिकायत दर्ज कराने पर हिरासा करने पर FBR की सरजनिश की है. सदर ममलकत वफाकी टैक्स मुहतसिब के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद करते हुए करार दिया कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मामला तासुब और ज़ाती रंजिश के बगैर कानून के मुताबिक निपटाए और इंतकामी रद्दअमल की हौसला शिक नहीं करे. FBR हुक्काम ने रुखसाना जमील की जानिब से टैक्स रिफंड की दरख्वास्त पर समाअत का मौका फराहम किए बगैर टैक्स आयद किया. वफाकी टैक्स मुहतसिब ने टैक्स गुजार रुखसाना कंवल के हक में फैसला दिया था, जिसके खिलाफ FBR ने अपील दायर की थी. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी ताकतों के माबैन एक पुल का किरदार अदा कर सकता है. CPEC से खित्ते में तरक्की की नई राहें खुलेंगी. इस बारे में रिपोर्ट करेंगे ज़िशान अली भट्टी. इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद के 49वें सालगिरह के मौका पर तकरीब का इनेकाद किया गया. तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि दुनिया भर में जो हो रहा है उसका पाकिस्तान पर असर पड़ता है. पाकिस्तान का जुग्राफियाई मकाम इंतहाई अहम है. Pakistan still has the potential to play the role as a bridge between great powers rather than a divider. If we engage with our overseas communities, if we engage with our intellectual capital, and if we engage with the United States not just as a country but as a people to put across our point of view and provide not only economic opportunities for our people. वज़ीर खारजा ने कहा कि इक्तिसादी और सफारती सतह पर हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है. हमें अपने नौजवानों के लिए तरक्की के मौके पैदा करने की जरूरत है. We're working together under incredibly difficult circumstances.
not only for us and for the world, of new ways for Pakistan to conduct itself, internally and externally, with the sole objective, with benefiting the people of Pakistan. डायरेक्टर जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज एम्बेसडर एजाज चौधरी का इस मौका पर कहना था कि हम विजन 2023 के तहत काम कर रहे हैं और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का मुकाबला कर रहे हैं। जिशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी और कतर के सफ़ीर सऊद अब्दुर्रहमान असानी ने इस्लामाबाद में अलग अलग मुलाकात की और तिजारत, सरमायाकारी और माशी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल किया। सफ़रा ने इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। पनाह गुज़ीरों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के डिप्टी हाई कमिश्नर ने भी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। अफ़गान मुहाजिरीन के मामले पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा ने मेज़बान कम्यूनिटीज़ की आलमी मदद को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम अज़्ज़ाबी ने मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान आने वाली नस्लों की तरक्की और खुशहाली का इनकलाबी विजन रखते हैं। दोनों कायदीन माशी, तिजारती, समाजी शोबों में मजबूत ताल्लुकात और रवाबित के फ़रोग़ के ख़्वाहां हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा हुकूमत ने फिल्म और सकाफत की तरक्की के लिए नई पॉलिसी पर अमल शुरू किया है। यूएई के फिल्म साज और सरमायाकार मुश्तरका मंसूबों पर सरमायाकारी करें। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक तिजारत और बिजनेस टू बिजनेस रवाबित को मज़ीद मजबूत करने के ख्वाहां हैं। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जिक्र करते हुए आपको आगाह करें कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला कुलगाम में 2 नौजवान शहीद कर दिए गए। गुज़श्ता 2 दिन के दौरान शहीद जवानों की तादाद 6 हो गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फौजियों ने नौजवानों को जिला के इलाके में शीपुरा में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। इलाके में गुज़श्ता 3 दिन से भारतीय फौज की कार्रवाई जारी है। बदनाम ज़माना तहकीकाती भारतीय इदारे NIA ने वज़ीर दाखिला अमित शाह की हिदायत पर श्रीनगर, बडगाम, बारामूला और दीगर इलाकों में जमात इस्लामी के अरकान और कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के हामियों के घरों पर छापे मारे। हुर्रियत रहनुमाओं जमील अहमद और मोहम्मद फ़ारूक रहमानी ने मोदी की हिंदुत्व हुकूमत की तरफ से कश्मीर में जमात इस्लामी से वाबस्ता फ़लाह-ए-आम ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम स्कूल पर पाबंदी की शदीद मजम्मत की। जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग और पीपल्स लीग ने पाबंदी तालीम के खिलाफ दहशतगर्दी करार देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो कश्मीर में तालीम दुश्मन पॉलिसी तर्क करने के लिए भारत पर दबाव डाले। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के मुस्तकबिल के नताइज को तब्दील करने के लिए हल्का बंदी के ड्रामे को हतमी शक्ल देने के बाद इलेक्शन कमीशन को वोटर फहरिस्तों पर नजरसानी की हिदायत की है। इस सिलसिले में हुक्मरान जमात BJP और RSS के हिंदुत्व नजरियात के हामी ओहदेदारों की तकर्री की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। सीनियर हुर्रियत रहनुमाओं मौलवी बशीर अहमद अल्फानी और सैयद बशीर अंद्राबी ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, आज़ाद कश्मीर शाह के नवमंतखब कन्वीनर महमूद अहमद सागर और दीगर ओहदेदारों को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि वो तमाम बैन अल-अक़वामी फोरम पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम को मज़ीद मौसर तौर पर उजागर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक के मामले को उजागर करने के लिए लीगल कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है। यासीन मलिक की अहलिया बशार मलिक के हमरा सुप्रीम कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भून ने कहा कि कमेटी यासीन मलिक और कश्मीरियों की मुश्किलात के हवाले से आलमी सतह पर आगाही पैदा करेगी। बशार मलिक ने कहा कि भारत में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं, मोदी सरकार ने अदलिया को भी घर की लौंडी बना रखा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। आपको आगाह करें कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्री मानसून बारिशों का आगाज़ हो गया है। बालाई इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। वज़ीर आज़म के अहकामात पर NDMA ने किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतालिका इदारों को हिदायत जारी कर दी हैं। यासिर हुसैन तफसील बताएंगे। तवील खुश्क साली के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्री मानसून बारिशों का आगाज़ हो गया है। इन बारिशों से जहां मौसम खुशगवार हो गया है, वहीं पे शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसी तरह से ज़ेरे ज़मीन जो पानी की सतह में कमी आई थी, उसमें भी बेहतरी आई है। लकी मरवत शहर में शाम के वक्त अचानक तेज बारिश और सख्त यालाबारी से गाड़ियों के शीशे जबकि घरों के सहन में मौजूद कीमती अशिया को नुकसान पहुंचा। इसी तरह यालाबारी और तेज बारिश से सड़कों पर कुछ वक्त के लिए सैलाबी पानी जैसी सूरत हाल पैदा हुई और गलियां पानी से भर गईं। जिला मानसेरा के मुख्तलिफ बालाई और मैदानी इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश से जारी गर्मी का जोर टूट गया। पिंडी गेप और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी से मुख्तलिफ इलाकों में छतें उड़ गईं। शकरगढ़, करतारपुर और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला सुबह से जारी है।
जिससे बिजली की फराहमी में तात्तुल आता रहा। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत बेशतर इलाकों में शदीद आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हुई। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और जहलम के मलहका इलाकों, पूंछ डिवीजन के कुछ इलाकों में शदीद आंधी के साथ बारिश भी हुई, जिसकी वजह से मवासलात और बिजली का निजाम मुतासर हुआ। इस्लामाबाद में गहरे बादल शाम के बाद खूब बरसे। गुज़श्ता कई रोज से जारी शदीद गर्मी का जोर टूट गया और शहरियों ने सुख का सांस लिया। नवाही इलाकों में बरसाती पानी के जमा होने और कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचने की इतलात हैं। महकमा मौसमियात ने जुमेरात से बालाई इलाकों में प्री मानसून बारिशों की पेशगोई की थी और इन बारिशों का सिलसिला 23 जून तक वक्फे से जारी रहेगा। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मौसम का हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शुक्रिया कासिम। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल सईद खुर्शीद अहमद शाह की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में होने वाले इजलास को बताया गया है कि बलूचिस्तान को पानी की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इक़दाम कर दिए गए हैं। माहिरीन की खुसूसी कमेटी सखर और गुद्दू बैराज का दौरा करेगी। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ने कहा कि आइंदा साल तक टेलीमीटर्स नस्ब कर दिए जाएंगे, जिससे पानी की तकसीम का खुदकार और मुनसिफाना निज़ाम कायम हो जाएगा। वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर सरदार अयाज सादिक से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर और इसके अलावा डिलीवरी एसोसिएट्स के चेयरमैन मिस्टर माइकल बाबर ने मुलाकात की। इस्लामाबाद में ये मुलाकात हुई और तिजारती मोड़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दो तरफा सालाना इमदादी मुज़ाकरात को बहाल करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने वफाकी वज़ीर को इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान से मुतालिक भी आगाह किया। वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी चौधरी सालिक हुसैन ने इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों में D8 मुल्कों को सरमायाकारी की दावत दी है। तुर्की में सरमायाकारी फोरम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तिजारत को जदीद खतूत पर उस्तवार करने और सरमायाकारी में इजाफे के लिए कारोबार दोस्त पॉलिसियों पर अमल पैरा है। वफाकी वज़ीर बराए तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि स्कूल से बाहर बच्चों की तालीम के मसले पर फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में वर्ल्ड बैंक के वफ़द से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आलमी बैंक के ताउन से जारी मनसूबों पर काम तेज़ करने की ज़रूरत है। वफ़द ने जारी मनसूबों से मुतालिक मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की भी यकीन दहानी कराई। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी और दीगर सेनेटर्स ने पार्लियामेंट हाउस में पोस्ट बजट सेमिनार से खिताब में कहा है कि माशी मुश्किलात में कमी के लिए इल्म व तहकीक पर मबनी मईशत, SMEs के फ़रोग और बरामदात में इजाफे पर तवज्जो देनी होगी। कराची के हल्का 240 में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। महाजर कौमी मूवमेंट के रफ़ीउद्दीन फैसल, तहरीक लब्बैक के शहजादा शहबाज और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मोहम्मद अबू बकर मद्दे मुकाबिल हैं। हल्का 240 जिला कोरंगी कराची में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग सुबह 8 बजे से बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रही। इस दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान के दरमियान हाथापाई और पुरतशद्दुद वाक़यात भी पेश आए, जिसके नतीजे में सियासी पार्टी का एक कारकुन जाँ बहक हो गया। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने इस वाक़े का सख्ती से नोटिस लेते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों को अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने की हिदायत की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 23 जून तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस सामिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच के रूबरू मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि क्रिमिनल लॉ से मुतालिक पाकिस्तान की तारीख में बनने वाली मजबूत तरीन JIT ने पैनामा केस में बराह रास्त शहादतें वसूल क्यों नहीं की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि गुज़श्ता हुकूमतें सियासी मुखालिफिन के खिलाफ बेबुनियाद केस बनाए। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सदर ममलुकत किसी एक शख्स की मर्जी पर चलने के बजाय मुल्क के लिए सोचें। नैब कानून में जो तरमीम हुई वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हिदायत के मुताबिक है। मैंने पिछले जब बार में आया था तो मैंने सदर साहब से एक दरख्वास्त की थी कि ऑर्डिनेंस में तो आप रात को 12 बजे भी नींद से उठा के कलम आपके हाथ में देके साइन करा दिया जाता है। आप असेंबलियों से इलेक्ट होते हैं। पहली बार आपने 10 दिन पूरे लिए, 10वें दिन वो कानून वापस किया। अभी दोबारा जहाँ तक मुझे पता है 9 या 10 तारीख को ये जॉइंट सिटिंग में दोबारा पास हुआ। सदर साहब के पास गया, वो सोते रहेंगे, 10वें दिन खुद ही ये लॉ बन जाएगा। मैं उनको फिर दरख्वास्त देता हूँ, बहुत ही मोतबाना अर्ज करता हूँ कि बड़ा अच्छा होगा कि वो सदर ममलिकत बन के दिखाएं, किसी एक शख्स की मर्जी पे ना चलें।
اسلام آباد کے احتساب عدالت نے نوریاباد پاور پلانٹ ریفرنس کی سماعت 7 جولائی تک ملتوی کر دی ہے۔ احتساب عدالت کے جج اصغر علی نے اس ریفرنس کی سماعت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سمیت دیگر عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ ملزمان کے وکیل نے موقف اپنایا کہ نیب کا نیا قانون صدر پاکستان کے پاس منظوری کے لیے بھجوا دیا گیا ہے، لیکن تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے دن پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا اور 100 انڈیکس میں 291 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 41,730 پر بند ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ میں 180 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت خرید 206 روپے 25 پیسے جبکہ قیمت فروخت 206 روپے 75 پیسے رہی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت خرید 206 روپے 8 پیسے جبکہ قیمت فروخت 208 روپے 5 پیسے رہی۔ اور اقوام متحدہ کی جانب سے 16 جون کو انٹرنیشنل ڈے آف فیملی ریمیٹنسز منایا جاتا ہے، جس کا مقصد روزگار کی غرض سے بیرون ملک جانے والے افراد کی قابل ذکر مالیاتی کردار کو تسلیم کرنا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گی وردہ سلیم۔ اس دن کو منانے کا مقصد سرکاری اور نجی شعبے کے علاوہ سول سوسائٹی کو ترسیلات زر کی مد میں آنے والی رقوم کو بہتر انداز سے خرچ کرنے اور بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر راغب کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے انٹرنیشنل ڈے آف فیملی ریمیٹنس کی قرارداد 12 جون 2018 کو منظور کی، تاہم اس سے قبل 2015 میں اقوام متحدہ کے انٹرنیشنل فنڈ فار ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کے تمام 174 رکن ممالک اتفاق رائے سے اس کی منظوری دے چکے تھے۔ 16 جون کو اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ بیسیکلی ریمیٹنس کو فروغ دینا ہے۔ 800 ملین پیپلز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ عرب امارات اور یورپی ملکوں میں پاکستانیوں کی کثیر تعداد موجود ہے، جس کی جانب سے ترسیلات زر بھی اضافے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے تخمینے کے مطابق تارکین وطن کی تعداد دنیا بھر میں 25 کروڑ 80 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ تحقیق کے مطابق ان میں اکثریت 20 کروڑ افراد معاشی تارکین وطن ہیں۔ پاکستان سے تقریباً ایک کثیر تعداد یورپ میں، مڈل ایسٹ میں اور دوسرے ممالک میں پاکستانیوں کی موجود ہے جو پاکستان میں زر مبادلہ بھیجتے ہیں۔ تو ایک تو یہ زر مبادلہ ان کی فیملی کو سپورٹ کرتا ہے، دوسرا یہ زر مبادلہ پاکستان کے اکانومی کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔ ترسیلات زر کے ذریعے ترقی پذیر ملکوں میں آنے والی رقوم ترقی یافتہ ملکوں سے آنے والی امداد اور سرمایہ کاری کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ فیملی ریمیٹنس ڈے منانے کا مقصد عالمی سطح پر ترسیلات زر کے ترقیاتی اثرات کو فروغ دینا ہے۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے مینیجنگ ڈائریکٹر توقیر مبشر نے کراچی سینٹر میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی وی ایک قومی ادارہ ہے۔ سی بی اے یونین کی جانب سے چارٹر آف ڈیمانڈ موصول ہو چکا ہے، جس پر جلد پیش رفت ہوگی۔ اس موقع پر ایم ڈی پی ٹی وی کو ادارے کے ریونیو سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن سیف اللہ شاہد نے کہا کہ پی ٹی وی انتظامیہ ملازمین کی فلاح کے لیے بھرپور انداز سے کام کر رہی ہے۔ یونین رہنما عدنان زاہد اور دیگر مقررین نے ملازمین کو مراد دینے اور پروموشن لیٹر جاری کرنے پر انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ سینٹرل سیلز آفس میں ایم ڈی پی ٹی وی کو ادارے کے ریونیو سے متعلق بریف کیا گیا۔ سی بی اے یونین سی ایس او کے مرکزی ایسوسیٹ چیئرمین محمد اعظم کے سربراہی میں وفد نے مینیجنگ ڈائریکٹر پی ٹی وی سے ملاقات کی اور ملازمین کے دیرینہ مسائل سے آگاہ کیا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر توقیر مبشر پی ٹی وی کراچی مرکز پہنچے تو انتظامیہ، سی بی اے عہدیداروں اور ملازمین نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ یوم آزادی کی 75 سالہ تقریبات کے سلسلے میں بیلاروس میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ 6 جولائی تک جاری رہنے والی اس نمائش میں 3 پاکستانی فنکاروں کے فن پارے رکھے گئے ہیں۔ کیلی گرافر عائشہ کمال کے عصری خطاطی پر مبنی فن پارے، عالمی شہرت یافتہ پاکستانی مصور صادقین کے شاہکار اور نورین ساجد کی پینٹنگز جو پاکستان میں روزمرہ کی زندگی کے رنگ و روپ کی عکاسی کرتی ہیں، اس نمائش کا حصہ ہے۔ نمائش میں لکڑی، سنگ سلیمانی اور چاندی سے بنی دستکاری، کڑھائی سے بنے ہوئے وال ہینگ، کشن کورز اور کانسی کی اشیاء سمیت پاکستان کے مختلف علاقوں کے ملبوسات بھی شامل ہیں۔ اس موقع پر پاکستانی سفیر سجاد حیدر خان نے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے فروغ کے لیے کاوشوں پر روشنی ڈالی۔ اسلام آباد کی کامسیٹس آرٹ گیلری میں تہذیب کی جھلک دکھاتے اسلامی خطاطی کے فن پارے، شبانہ نذیر کی خطاطی اور منییچرز کے نمونے نمائش کے لیے پیش کیے گئے۔ احوال بتا رہی ہیں مریم ملک۔
तहजीब की झलक दिखाते इस्लामी खताती के नमूने और कहीं मिनिएचर वर्क के जलवे। शबाना नज़ीर के वर्क की नुमाइश का इफ्तिताह कॉमसैट्स के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तबस्सुम अफजल ने किया, जबकि मिनिएचर गुरु उस्ताद बशीर भी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी शागिर्द के काम को सराहा। नुमाइश में मुगल आर्ट की झलक दिखाई दी तो राजस्थानी अक्स भी। शबाना नज़ीर ने उसे सकाफती वर्क की तजदीद की काविश करार दिया। ये एग्जीबिशन बेसिकली एक ट्रेडिशनल आर्ट का रिवाइवल है। इसमें पर्शियन आर्ट भी है, मुगल इंस्पिरेशन भी है, फिर उसके अलावा राजस्थानी स्टाइल भी है, तो हर तरह का आर्ट फॉर्म आप देखेंगे। बहुत प्यारी चीज़ें बनाई हुई हैं, बहुत क्रिएटिव है, बहुत इनोवेटिव है। मैं अभी आर्ट वर्क ही देखी थी स्टूडेंट्स का, उन्होंने बहुत क्रिएटिव आर्ट वर्क बनाया हुआ है। बड़ी कामयाब एग्जीबिशन थी और इस एग्जीबिशन में मैंने बहुत सी चीज़ें देखी। हमारी तारीख, साउथ एशिया की, जनूबी एशिया की जो तारीख है, जो हमारी रस्म रिवाज हैं और जो हमारी शनाख्त है, उसमें नुमाया थी। सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो फॉलो कर रहे हैं सब कॉन्टिनेंट के आर्ट को, वो बहुत बेहतरीन है। मारूफ टीवी फनकार जमाल शाह और दीगर शहरियों ने भी फन पारों को सराहा। रिवॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट नामी ये नुमाइश 23 जून तक जारी रहेगी। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध में मादूम होती नस्ल वाले परिंदों, हैवानात और सांप समेत दीगर रेंगने वाले जानवरों को मुनफरिद अजायब घर में रखा गया है। म्यूजियम तफरीगाह के साथ तलबा और मुहक्किकीन के लिए भी मालूमात का अहम जरिया है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं कराची से सबा जावेद। शहर कायद में वाक़िए इस अजायब घर में सूबे के नायाब जंगली जानवरों की मम्मियों और तस्वीर को म्यूजियम की जीनत बनाया गया है। तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात के महकमे ने इस म्यूजियम में मारखोर, हिरन, चुपकली, पहाड़ी तोते, तीतर, सांप और मुतअद्दिद इक़साम के परिंदों के नमूने महफूज किए गए हैं। ये एक बड़ा मुनफरिद म्यूजियम है, क्योंकि म्यूजियम वो होता है जहाँ आप आर्काइव्स को प्रिजर्व करें। तो ये वाइल्ड लाइफ म्यूजियम है, इसलिए वाइल्ड लाइफ रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं, एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो हमने यहाँ प्रिजर्व किए हुए हैं। म्यूज़ियम के ये है कि यहाँ आप जो स्टूडेंट्स आते हैं ज़ूलॉजी के, तो वो डिटेल में एनिमल्स को देख सकते हैं। इसी तरह साथ साथ हमारे यहाँ पिक्चर्स भी हैं, जिसमें एजुकेशन पर्पस के लिहाज से बहुत अच्छी हैं। कराची शहरियों के लिए एक तोहफ़ा है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। महकमा तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात के मुताबिक इस म्यूजियम में सिंध में पाए जाने वाले 80 इक़साम और नस्लों के परिंदों, रेंगने वाले जानवरों और जंगली हयात के नमूने और इनकी तस्वीर मौजूद हैं। ये म्यूजियम जहाँ एक तफरीगाह है, वहीं तलबा और मुहक्किकीन के लिए मालूमात का अहम जरिया भी है। कदीम और सकाफती वर्से की इस शाकार इमारत में कायम इस अजायब घर में जानवरों को हुनूद करके रखा गया है। सबा जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।